हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज सामान्य विज्ञान पार्ट 2। आइए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। Which bank carries the duty of Central Bank of India? Reserve Bank of India. Which bank carries the duty of Central Bank in India? The Reserve Bank of India. Question number 27. भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापड़ मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन बिल, प्रापड़ मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। कृषि लागत और मूल्य आयोग। In India, there is a commission relating to minimum support price, procurement price, etc. in relation to agriculture commodities, agriculture cost and prices commission. In India, there is a commission relating to minimum support price, procurement price, etc. in relation to agriculture commodities, agriculture cost and prices commission. क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिचर इज मिनिमम ड्यू टू सब्सिडीज ऑन ऑयल। गवर्नमेंट ऑफ India's expenditure is maximum due to subsidies on oil. Question number 29. भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय में। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय। In which social accounting system in India is classified income, products and expenditure? In which social accounting system in India is classified in products, income, products and expenditure? Question number 30. ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? मिल्टन फ्राइडमैन ने। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? मिल्टन फ्राइडमैन ने। Who first imagined the relationship between the rate of interest and the level of consumption? Milton Friedman. Who first imagined the relationship between the rate of interest and the level of consumption? Milton Friedman. Question number 31. लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? क्लार्क। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? क्लार्क। Who was the proponent
of dynamic theory of profit? Who was the proponent of dynamic theory of profit? Clark. Question number 32. मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति। What is the process of curbing inflation of reducing money supply? Deflation. What is the process of curbing inflation by reducing money supply? Deflation. Question number 33. देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। Small farmers are defined in the country as those farmers who have holding 1 to 2 hectare. Small farmers are defined in the country as those farmers who have holding 1 to 2 hectares. Question number 34. मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी। Suppose goods A and B are complementary, then what will be the effect of increases in price of A? B demand will fall. Suppose goods A and B are complementary, then what will be the effect of increases in price of A? B demand will fall. Question number 35. प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। What is the almost reverse process of photosynthesis? Burning wood. What is the almost reverse process of photosynthesis? Burning wood. Question number 36. 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। Which was the first speaking film in India in 1931? Alam Ara. Which was the first speaking film in India in 1931? Alam Ara. Question number 37. गरबा एक नृत्य है कहाँ का? गुजरात का। गरबा एक नृत्य है कहाँ का? गुजरात का है। गरबा इज ए डांस ऑफ गुजरात। गरबा इज ए डांस
ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए, समर्पित के लिए ही। द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट इज डेडिकेटेड टू द promotion of fine arts. The Academy of Fine Art is dedicated to the promotion of fine arts. Question number 39, The Future of India नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जालान। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ इंडिया? विमल जालान। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ इंडिया? विमल जालान। क्वेश्चन नंबर 40, एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? पूंजीवाद से। एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? पूंजीवाद से। विथ whom is the term monopoly associated? Capitalism. With whom is the term monopoly associated? Capitalism. क्वेश्चन नंबर 41, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड के कमी के कारण होती है। एनीमिया इज ड्यू टू लैक ऑफ फोरिक एसिड। एनीमिया इज ड्यू टू लैक ऑफ फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 42, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ पाई जाती है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ पाई जाती है। What type of tail is found in a shark? Asphyxia. Asphyxia tail. What type of tail is found in a shark? Asphyxia tail. क्वेश्चन नंबर 43, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? हरे पौधे। Who is the largest additive in solar energy? Green plants. Who is the largest additive in solar energy? Green plants. क्वेश्चन नंबर 44, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। Which is the longest cell in human body? Nerve cell. Which is the longest cell in human body? Nerve cell. क्वेश्चन नंबर 45, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक का अधिशेष। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक का अधिशेष। What is a person called when he has to pay more for something than to leave it?
producer surplus. What is a person called when he has a to pay more for something than to leave it? Producer surplus. क्वेश्चन नंबर 46, शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के। शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के। Infant sex depend on those whose chromosomal contribution. Father. Infant sex depends on whose chromosomal contribution. Father. Infant sex depend on whose chromosomal contribution. Father. क्वेश्चन नंबर 47, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइकोप्लाज्मा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नॉन? माइकोप्लाज्मा is the smallest prokaryotic organism known. Mycoplasma. Question number 48, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? सीसी मक्खी। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सीसी मक्खी। Sleepy sickness a carrier of the disease? Sea fly. Is sleepy sickness a carrier of the disease? Sea fly. Question number 49, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। Who is the malaria parasite that spreads deadly malaria? Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. Who is the malaria parasite that spreads deadly malaria? Plasmodium falciparum. क्वेश्चन नंबर 50, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा। अमीबा में नहीं होता। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा में नहीं होता। Which animal does not have a nervous system? Amoeba. Which animal does not have a nervous system? Amoeba. आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।